सो गाइज वी आर इन मेकरी सर्कल बैंगलोर और आज यहाँ पे KTM 390 एडवेंचर की लॉन्च होने वाली है और अभी थोड़ी देर में रिवील करने वाले। पीछे आपको बाइक दिख रही होगी लगी हुई है, थोड़ी देर में रिवील होगा फिर आपको दिखाते हैं। कई सारी और भी बाइकें यहाँ पे लगी हुई है बट आज आपको फाइनली हमारे बैंगलोर में KTM एडवेंचर 390 दिखने वाली है। एस वेरिएंट है, स्टैंडर्ड वेरिएंट भी और एक्स वेरिएंट भी है, दोनों ही आज रिवील होने वाला है। तो चलो फिर थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। हम लोग आए हैं अभी लॉन्च इवेंट पे। Meet Sasank. He is already having mic and all. Brand ambassador of KTM is about to speak something. I was thinking that you will speak something now, but then I realized that you are having camera. So guys, थोड़ी देर में ये पर्दा जो है ये हटने वाला है. Then we can see KTM Adventure 390 पूरी तरह से. So guys, here in Makery Circle and then in Marathali also there is a launch. To everyone who have come here, thank you so much for making it here, and I know that the whole event was all planned out in a very short span of time, and I'm so happy that everyone have come here, and I'm liking the energy that everyone's having here. I hope everyone's all excited for the bike. Yes. Super. The riding crews and social media influencers, you all are here, and I'm really glad to have you here. Let's start off the event. So once again, welcome to KTM Experience Center. We all were waiting for this mission for a very long time. Okay, in 2019, we came with the first gen, and now with this wonderful, marvelous mission. It is where the fastest wins, where the stopwatch doesn't lie, and success or failure is measured at the checkered flag. But for those who live racing, it really is more than just a race against the clock. 46 PS at the RPM at 8,500 and torque is 39 at 6,500 RPM. And this bike comes with a better front and rear suspension travel, that is 200 mm and 2.5. And it has a better wheelbase than the previous generation from 1430 to 1470. And the ground clearance is improved from 200 to 237. And the saddle height, the best part is saddle height is reduced from 855 to 830. So many of them will be happy for this bike, so everybody can sit and ride on this bike. And curb weight is 182 kgs. And apart from that, fuel tank capacity is 14.5, and front brake is 320 mm, and rear brake has been improvised from 230 to 240 mm. So, and the other part with this is it comes with the tubeless spoke wheels. So that's an added advantage, and it all comes with a very packaged price. The ex-showroom for the Adventure is 3,67,000. So you know there is no big difference from the old generation to this generation. So we are almost there. We'll have a video for the Adventure and then we'll go for the unveiling. Can everyone give a big round of
guys, first time we can touch and feel this bike, completely new bike. It has got all the things which was missing in the earlier version. Everything is now corrected, I feel. This bike is free for an exciting journey ahead with the new KTM 390. Thank you. This windsill is quite dull. Whatever you like. This is Adventure 390X in orange color, and then we have this one in white and orange combination. This is standard version. This seat height of this is bit higher, 5 mm more than this one. The bike looks amazing. Let me know in comment which one would you prefer, the X version or the standard one. काफ़ी बढ़िया सा माहौल भी बना हुआ है. And projector lights are quite good because you can see how the rays are going for the projector light. Quite sharp. So now you don't need much of the LED lights to be fixed. I think this will do work for you on the highways and in the darker situations. We have completely digital screen here, and then we have cruise control. So guys, now let's have a look at this brand new motorcycle, and I'll just give you an overview of this bike, how it looks. तो पीछे आपको एक छोटी सी टेल लैम्प मिलती है LED में. ये जो स्टैंडर्ड वर्जन है, और यहाँ पे आपको जो अपोलो का टायर मिलता है, एंड अपोलो टायर इज़ 17 इंच टायर, 46 bhp पावर. ऑलरेडी आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी नोइंग दिस. फिट फिनिश जो है ना इस बार काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है. पहले जो कूलेंट का जो था ना, ये सब दिखता था बाहर, अभी इसे हाइड आउट कर दिया गया. और सस्पेंशन जो है ना साइड कर दिए गए हैं, तो साइड में सस्पेंशन है, नॉट इन द सेंटर. और अंडर बेली एग्जॉस्ट आ गया है, तो ये भी अच्छा चीज़ है. और ये जो क्रैश गार्ड देख रहे हो आपको, ये भी डिज़ाइन में चेंज है. पहले ऐसी क्रैश गार्ड नहीं आती थी. द गुड पार्ट है इसके आगे में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ जो स्पोक व्हील मिलते हैं, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, और ये 19 इंच है और 390 mm का आपको डिस्क मिलेगा. और यहाँ पे जो है ये डकार रैली स्टाइल वाला गार्ड, मड गार्ड्स. और ये जो है ना, ये बेस्ट पार्ट है. तो यहाँ पे आपको लाइट जो मिलती है ना, वो एक बार ऑन करके दिखाता हूँ. अच्छा, वो गाड़ी स्टार्ट होगी तब दिखेगा. यहाँ पे आपको DRL मिलते हैं, एंड देन प्रोजेक्टर सेटअप है, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट है लो बीम के लिए. और जो ये जो आपका पूरा विंड स्क्रीन है ना, ये काफ़ी बड़ा हो गया. और साइड में भी देखो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है. तो अब शायद आपको जो विंड ब्लास्ट आती है ना, वो नहीं मिलेगी. और यहाँ पे एक बढ़िया सा 390 एडवेंचर और KTM लिखा हुआ है. इंजन कुछ ऐसा. और चलो फिर ऊपर बैठते हैं, जो कि है यहाँ का कॉकपिट व्यू जो बोलते हैं ना, ये है. और स्क्रीन आपको पूरा कलरफुल डिस्प्ले, 5.5 इंच का डिस्प्ले है. यहाँ पे अभी स्क्रीन का जो मोड है, वहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर दिखा रहा है अभी फर्स्ट गियर में, और ऑफ रोड मोड में है.
ये डिस्प्ले है ना, ये आपका 390 जो ड्यूक आता है सिमिलर है, बट यहाँ पर आते हो तो आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। और नीचे स्विच जो देख रहे हो ना, यहाँ से आप स्पीड लोअर डाउन कर सकते हो, इधर से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो स्क्रूज में। ये बहुत बढ़िया चीज़ ऐड कर दी गई है, बट ये आपको स्टैंडर्ड वर्जन में ही मिलता है, जो आपको एक्स जो लगी है वो उसमें नहीं मिलता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको सस्पेंशन जो है ये पूरी तरह से एडजस्टेबल मिलता है, सो रिबाउंड्स एंड कंप्रेशन दोनों चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, बट वहाँ नहीं कर सकते हो, ना ही रियर में ना ही फ्रंट में। और इसमें फुल्ली एडजस्टेबल मिलेगा और स्विच की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। बाकी वहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम ही है। और यहाँ का जो हैंड ग्रिप है ना, पहले से बढ़िया कर दिया गया, तो आपको थोड़ा मतलब फील अच्छा आता है। और व्यू भी ना, अभी जो मिरर का व्यू है ना, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको प्लस पॉइंट है, जो कि अच्छा दिख रहा है। और ये सेम मिरर वहाँ भी आपको एक्सपीरियंस में भी मिलेगा। कहेंगे इसके ये जो आपका डिस्प्ले है ना, ये भी आपको सेम है, बट यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, वहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आई थिंक क्विक शिफ्टर, यहाँ पे क्विक शिफ्टर भी है। एंड द मेजर डिफरेंस इज़ द क्रूज कंट्रोल, जो कि वहाँ नहीं है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। बाकी मोड्स में लेट्स ट्राई। तो दिस इज़ हाउ लाइक स्क्रीन लुक्स। डिस्प्ले में आपको दिखाता है कि आप किस बाइक में अगर आप कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहे हो तो कहाँ पे कूलेंट है ना, वो भी आपको दिखा रहा है ग्रीन कलर में। एंड देन बैटरी का भी विजुअल, आई मीन यू कैन सी इन द विजुअल्स, ओडोमीटर, डेट, सर्विस, वार्निंग्स। गो बैक एंड देन यहाँ से आप मेन्यू में जाते हो तो यहाँ पे आपको राइड मोड मिलता है, जहाँ पे राइड मोड में ऑफ रोड, रेन मोड, स्ट्रीट मोड, ये 3 मोड मिलेंगे। उसमें सिर्फ ऑफ रोड है, क्योंकि वहाँ पे बस आप ABS स्विच ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एक स्पीड मोड भी मिलता है और रेन मोड भी मिलता है, वहाँ पे आपको बस ऑफ रोड मोड मिलेगा। और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो ऑफ रोड मोड को। अगर नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर भी है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड डिस्प्ले की जो मोड है ना, वो भी आप चेंज कर सकते हो। कि अगर मैं दिखाऊँ तो स्टैंडर्ड व्यू में आ जाएगा। तो लेट्स डू इन अ स्टैंडर्ड व्यू नाउ। तो दिस वन इज़ सेलेक्टेड। और फिर हम लोग ABS मोड जो है, ABS मोड में तो दिखाए आपको ऑफ रोड एंड ऑल। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन भी है। So this is what I think about the display of this bike. And then we have okay, info about this bike. So all the trip, coolant and battery, odometer, everything you can see in this mode. And then if you come back, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल की जो मोड है ना वो मिलती है। यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हो आप। और फिर बैक जाते हैं, ओह सॉरी, तो यहाँ आते हैं और नीचे आओ तो क्या क्या है देखते हैं। फिर सेटिंग में आते हो तो फेवरेट्स है, लाइक आप यू कैन ऐड योर फेवरेट्स, हाउ योर स्क्रीन शुड लुक, वो है। क्विक सेलेक्टर जो है ना, बटन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे आपको कॉन्फ़िगर रखना है। कस्टम स्विच भी आपको मिलता है कि जो नीचे पे यहाँ पे 2 स्विचेस है ना, ये 2 स्विच को कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड देन कनेक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट योर फ़ोन। देन दिस शिफ्ट लाइट यू कैन एडजस्ट हाउ मच RPM यू वांट टू फिक्स इट। देन क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स एंड लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो एडजस्ट। एक्स्ट्रा फंक्शन कुछ और हैं शायद इसमें, ऑडियो की वॉल्यूम एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन एडजस्ट। So quite lot of features in this display particularly, and definitely it's a big upgrade for the current version. Fit finish is good. Tank remains safe 14.5. चाबी जो है ना वो बदल दी गई है और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा की मिलता है। और यहाँ पे आपको बेसिकली पुराने वाले मॉडल में आप यहाँ पे देख रहे थे, बट अभी जो है यहाँ पे मिल रही है। और ग्रैब हैंडल्स क्वाइट वाइड एंड व्हाट आई फील लाइक थोड़ा सा सीट जो है पीछे का थोड़ा छोटा हुआ है, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स मैनेजेबल। बट ये वाला जो है ना पोर्शन, यहाँ पे टॉप बॉक्स कैसे लगेगा, दैट हैज़ टू बी फिगर्ड आउट। और वो आई थिंक मैनी अदर OEMs विल बी वर्किंग आउट। जो ये जो देख रहे हो ना, ये कम्प्लीटली सेटअप है, ये फोक ट्यूबलेस सेटअप है। और अपोलो की टायर आपको मिलती है यहाँ पे 130/80 R70 की टायर है। यहाँ पे डबल स्विंग आर्म है
च्युइंग गम का डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। इंजन इज़ LC4C न्यू इंजन विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन KTM Duke. So overall bike looks quite promising. Definitely what everybody was waiting. It has got everything what we need and what was missing in the bike in Adventure 390 earlier version. The wheel is bit thin, so this would be good for doing off-road trails. But here when you see like थोड़ा सा thick भी है और टायर छोटे हैं और यहाँ पे alloy setup मिलता है, तो जिनको ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना है तो आई थिंक दिस वुड ऑल्सो मेक सेंस लुक वाइज. इवन आई लाइक द ऑरेंज कलर मोर, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कंप्लीट KTM वाली फील भी आती है. एंड देन भी सेम स्क्रीन है. यहाँ भी देखेंगे कि आखिर स्क्रीन में क्या डिफरेंस है. वही जो ऑप्शंस है वो शायद नहीं रहेंगे यहाँ पे. लेट्स चेक आउट दैट ऑल्सो. हैं अब हम आ चुके हैं KTM एडवेंचर X की स्क्रीन में. एंड लेट्स सी व्हाट यू गेट. सो अर्लियर वर्जन के जैसे यहाँ पे जो स्विचेस एंड ऑल पहले से बेहतर कर दिए गए. एडवेंचर X जो है ना काफ़ी बजट ओरिएंटेड लगता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको प्रीमियम फील आएगी X वर्जन में भी. सो यहाँ पे मोटरसाइकिल ABS में आपको जैसे मैंने बताया कि ऑफ रोड एंड अगेन लाइक दो वर्जन है, रोड एंड ऑफ रोड, दैट्स इट. एंड देन डिस्प्ले मोड आप देख सकते हो 2-3 तरह से सेटिंग है. जैसा भी आपको 2 सेटिंग है, स्टैंडर्ड और नॉर्मल व्यू. एंड देन यू गो बैक एंड यू हैव सम इन्फो अबाउट द बाइक. यहाँ पे आपको ट्रिप, फ्यूल रेंज, कूलेंट सेम एज़ जो अभी आपको मैंने उस बाइक में दिखाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको सेम मिलती है. नीचे आए तो what you get is like quick selector. अच्छा, again you can customize your quick selector buttons. And then connectivity. Oh, connectivity is there. Mobile definitely you can connect through Bluetooth. Shift light, clock date, and oh, this got even the quick shifter. So amazing. Even now you have quick shifter in X version. And then you have some extra function about all this. All you can set up. I think that's about it. यहाँ पे और ज़्यादा कुछ सेटिंग दिख नहीं रहा. यहाँ पे सस्पेंशन जो है ना ये आपको कस्टमाइज नहीं है. ये कम्प्लीटली जो सेटअप आपको बाइक के साथ आएगी बस वही है सेटअप. और यहाँ जो टायर मिलती है ना, ये आपको टायर है अपोलो की टायर मिलती है, जिसकी साइज़ 130/80 R17 की टायर मिलती है. सो लवली बाइक. सो यहाँ पे आपको अच्छी विंड फ्लो मिलेगी ना, जो भी एयर है ना यहाँ से निकल जाएगी. अच्छा फिट फिनिश किया गया है यहाँ पे. और यहाँ पे भी एक एयर वेंट दिया गया है वाइज़र में. और जो वाइज़र का साइज़ है ना बड़ा है. साइड में भी आप देखोगे तो अच्छी विड्थ है, जिसकी वजह से ना एयर जो है ना कम्प्लीटली रुकेगी आपके तरफ आने से. जो बड़े बाइक में होता है बेसिकली वो चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा. ये सारी चीज़ें, सारी लाइटें LED में. And the travel of suspension, you can see earlier suspension was quite stiff, but now I don't think it is like that. There are a lot of plays there in this suspension. Overall, I like the machine. I like the way it looks and the things it provide. Mostly the light setup is also quite good, because इतनी अच्छी लाइट तो वहाँ पे नहीं मिलती. प्रोजेक्टर एटलीस्ट नहीं मिलती थी पुराने वाले वर्जन में. Let me know your opinion about this bike. I think I have covered every features and differences between the standard version as well as the X version, and I hope you must have enjoyed this complete vlog. और vlog अच्छा लगा तो please subscribe my channel and also check out my Instagram photos, videos as well at AutoFreak AJ.
हुआ है आई थिंक। हाँ वो रैप है। रैप है ना, sexy है। भाई ये तो डर्ट बाइक है, दो डर्ट बाइकें हैं खतरनाक। 450 SXF एंड दैट वन आई एम नॉट श्योर विच मॉडल इट इज़। हाइट टॉल बाइक इट इज़। सस्पेंशन की लेंथ देख रहे हो भाई साहब, इसको आप रोड पे तो नहीं चला सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड डर्ट बाइक। फिनिश इज़ क्वाइट गुड। छोटा सा मीटर है। एंड हियर इज द सुपर एडवेंचर 1290। If you want to experience, you have to come to Mekri Circle because this bike is only available in Mekri Circle. And this is Duke 850. So guys, I hope you must have enjoyed today's vlog और जो भी आपको information मिली, I think that might help you to buy in a buying decision also for this new Adventure 390 2025 model. If you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to our channel Auto Freak HA। और मुझे Instagram में भी आप follow कर सकते हो @autofreak_HA। Till then, stay safe, keep riding, keep traveling. Bye bye.